Good afternoon now. Our time was 11:30 and it's almost 12. And we just now, with your all permission, all society office bearers, we start today's session. That is the education and training session for cooperative societies in Maharashtra under section 154B6. You all of us knowing the section 154 is inserted in Cooperative Act in the year 2019. Before that, the various sections of the bylaws of MCS Act, Maharashtra State Cooperative Acts, is applicable for all the societies. But in 2019, section 154 is inserted in the law. So according to that section, there are various sections of the 154. In that all, one particular section is section 154B subsection 6. We all are here for to discuss training under that section. First, I would like to explain the section, what is that section and why we all are here. In this section, it is clearly stated that to all cooperative societies in Maharashtra, all the managing committee members, including the office bearers, manager of the society, supervisor of the society, and all other persons who are directly or indirectly involved in management of the society are mandatory to take training under this section once in a year. For this, a certain charges is applicable, and you all are knowing that if you read the section 67 of our bylaws, bylaw number 67, where the various billing heads are described, in that the education and training fund, all the society collected from the members, okay, that is rupees 10 per member per month. That amount is to be used for payment of training of active members of the society. Okay. So, our cooperative department, the Commissioner of Cooperative Pune, is authorized to various organizations to conduct this type of training. Not all the person, all the individuals, all the chartered accountants, all the panel auditors, whoever are, all the advocates are there, is not eligible to take this training. Okay, once you keep in mind this, only 3 to 4 organizations is authorized to take this training, and all these organizations appoint on behalf of them or authorize on behalf of them to expertise in the various local areas. Okay, so for your kind of information, in our area, or maybe you say in all of the Maharashtra, I am the one of the person who is authorized from the Sahakar Bharati and Mahaseva. These two are the main authorized organizations from the cooperative departments. So I am authorized from both Mahaseva also and Sahakar Bharati also. Mahaseva is on the Maharashtra level. All of you know about the Ramesh Prabhuji. Okay? He is secretary of Mahaseva. He is on the Mahaseva also. And Sahakar Bharati is run on the all over India level basis. In all the states, not only the Maharashtra State Cooperative, but all the other states also, full complete India, wherever cooperative department is run out, the Sahakar Bharati is authorized to take the such type of initiations. Okay? So I am authorized from both this. Now, the minimum period of the training is 30 minutes. The maximum is depend upon your questions, your queries, what you ask to us, we will oblige to solve all this. If you people want a particular topic, because
see, practically if we take the in half hour, 30 minutes, it is not possible to explain you whole bylaws. है ना? So, being a mutually understanding between you, all the office bearers of the various society present here, and me, we'll decide any topic which you all say. I'll give you a small lecture on that topic, or otherwise we'll take direct question answer round. What you will be prefer? Sir, we would like to know more about this section 75. That is disqualification. Disqualification of the managing committee. And what we have understood is that there are certain subsections to that. Okay, I'll take that this point also. So my question was whether we start with any point or any topic. Section 75, I understood. I take this today's meeting. Anything else? Anything else? So I should know the total questions now. So I will speed up my speech accordingly. Then there should be. Is there something on the transfer of property in case of Transfer and transmission of properties. Okay, I know. Let's note it down now. All whatever the questions raised by them. Number 1, section 75, disqualification of managing committee members, transfer and transmissions. Anything else you people want to know? For the fresh admissions which take place after sale of flat. That I cover under the transfer and transmission. The only issue is people take time beyond 6 months also to submit their documents to the bank. Yes. I would like to address this. Okay. If transfer documents submitted beyond the time limit prescribed under the law. Okay. One, in case in the MC meeting, there are certain members who don't let conduct the meeting properly. Don't let us conduct. What is to be done? No, I have not understood the question properly. There are certain members who are They disrupt the non-cooperating. Committee members who are non-cooperating. It means there are the two groups in managing committee itself. Yes. Some members are likely to conduct meeting monthly basis or whatever it is, and some members are not allowed to conduct the meeting. Exactly, yes. Okay. What is to be done? If some 2 or 3 members. So law is silent about this. law doesn't describe if there are 2 types of members. No, it should be the. ठीक है, shall we will discuss this also. Okay. Normally, before answering these all questions, just for 5 minutes, I tell you what are the responsibilities of managing committee. Okay, being you all are the members of the managing committee, some responsibility is yours also. Okay. Once you elected as a member of managing committee, you need to do all the acts in your society as per the law, prescribed in the law, honestly and with cooperation. It doesn't mean कि आप चेयरमैन बन गए हो तो आप सोसाइटी के मालिक बन गए हो, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपकी चेयरमैन बनने के साथ, आपको सेक्रेटरी बनने के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ठीक है? वो कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपने ऑफिस बेरर बनने के बाद फुलफिल करनी ही है, ठीक है? जैसे सारे मेंबर्स को आपने कोशिश करना है, जितने भी आपके कमिटी मेंबर एज वेल एज फ्लैट ओनर्स जितने भी हैं उनको एक साथ मिलके चलना है, कोऑपरेशन से चलना है, सबकी प्रॉब्लम्स विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ कंप्लीट फुलफिल करनी है। ये नहीं देखना है कि ये इसके साथ मेरा कुछ पर्सनल ऐसा है, मैं इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूंगा, उसकी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा नहीं देखना है आपने। ये एक फैमिली के जैसे होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको अपनी फैमिली समझिए। आप ऐसा नहीं करते हैं फैमिली में कि बड़े बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दी, छोटे की नहीं की, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपने लॉ के दायरे में रह के जितना मैक्सिमम हो सके आपके हर एक मेंबर को कोऑपरेट करना है और उनकी जो भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रॉपर्टी और उनके लाइफस्टाइल, रहने का, देखो रहने की जगह आदमी का जो माइंड रहता है, जो स्टेटस होता है, और ये सब जो है वो जहां आदमी रहता है पूरा वक्त या जहां काम करता है, अगर कोई कॉमर्शियल सोसाइटी है तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है उसका मेंटली स्टेटस। तो उसमें किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है,
ठीक है। आपने मंथली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स। उसमें प्रीवियस मंथ में जो भी आपकी एक्टिविटीज हुई हैं उनके अप्रूवल्स करने हैं। आने वाले मंथ में जो आपके फ्यूचर्स प्लानिंग्स हैं उनके रिजोल्यूशंस लेने हैं, अप्रूवल्स लेने हैं। और बायलॉज के अंदर बहुत जगह पे एक्सपेंसेस का ऑथराइजेशन मैनेजिंग कमेटी को दिया हुआ है, कितना लिमिट तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन सी चीज आपको मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करके करना है, मेंटेनेंस किस टाइप का मेंटेनेंस आपने जनरल बॉडी में अप्रूव करना है, किस टाइप का मेंटेनेंस के लिए आपको टेंडर्स की जरूरत है। द वेरियस सेक्शन ऑफ द बायलॉज प्रिस्क्राइब दिस, ठीक है। विल नॉट डिस्कस ऑल दिस, बट जनरली आई सेड कि यू ओबे दैट ऑल द सेक्शंस, ठीक है। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग पावर्स जो है, पावर ऑफ मैनेजिंग कमेटी एंड एजीएम इज वेरी वास्ट एंड सेम टाइम इट इज रिस्ट्रक्चर्ड आल्सो। You should know all the provisions of the law, being a office bearer, है ना। आपको वो टाइमली स्टडी भी करना है। हम 1 घंटे की ट्रेनिंग में उतना नहीं बता सकते। आप मेरे से अलग से कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, और आपको बाकी भी लॉ जो है वेरियस वीडियोस देख के डिस्कशन करके लॉ के बारे में एक दूसरे से वो पता करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लॉ की आधी जानकारी की वजह से भी मिस्टेक्स हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से इसको कन्वे करता हूँ। स्टोरी है, इट्स नॉट रियल, ठीक है। एक सोसाइटी की एजीएम चल रही थी टेरिस पे, ठीक है। वहां पे एक मेंबर डिफॉल्टर था। अब डिफॉल्टर मेंबर के अगेंस्ट लॉ में बोला है कैसे रिकवरी करनी है, बट वो एजीएम में किसी को जानकारी नहीं है कैसे करनी है। उनको लॉ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आपके जैसा ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है। उन्होंने डिसाइड किया वो पैसा नहीं देगा तो उसको मर्डर कर दो। रिजोल्यूशन पास हो गया, राइटिंग में आ गया, है? ये अपना कोई मालवाड़ी बिजनेस नहीं है, दादागिरी बिजनेस नहीं है कि गया दुकान का पैसा नहीं देना, 2 चप्पड़ थाट मार के गोली मार के आ गया। ये वैसा नहीं है, ठीक है। ये आपकी सोसाइटी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव एक्ट में, है ना। तो उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास कर लिया क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। स्टोरी है खाली ना। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग चेयरमैन उठा, 703 की बेल मारी। आई होप 703 किसी का फ्लैट नहीं है। 703 की बेल मारी, मेंबर ने दरवाजा खोला, चेयरमैन ने गोली मार दी। पुलिस आ गई। पुलिस ने बोला क्यों भाई, क्या किया? मुझे नहीं मालूम, मैं चेयरमैन हूं, जो रिजोल्यूशन पास होगा मुझे वो काम करना है। रिजोल्यूशन रात को पास हुआ, सुबह मैंने गोली मार दी, तो क्या चेयरमैन इससे एस्केप हो सकता है लीगल प्रोसीडिंग से? नहीं ना। तो ये बस एक छोटी सी स्टोरी से मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि कृपया करके आप जो भी रिजोल्यूशन पास करें, बीइंग अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, वो लॉ के दायरे में पास करें। अगर आप लॉ के दायरे से बाहर रिजोल्यूशन कोई पास करते हैं तो फिर वो चेयरमैन का हाल होना है जो इसका हुआ है, ठीक है। Very nice analogy. तो इसके अलावा और बहुत सारे जो लॉज हैं वो आपको कंप्लाई करने, एक छोटा सा मेरा मैसेज कन्वे करना था। सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 75 का पूछा, तो 75 को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 75 इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमसी मेंबर्स। 1 or 2 members, or maybe sometime it is power to registrar disqualify whole of the committee. Normally committee is appointed, selected for 5-year term. अब अगर कमेटी बराबर काम नहीं करती है और किसी ने कंप्लेंट कर दी रजिस्ट्रार ऑफिस में, और ना भी कंप्लेंट की रजिस्ट्रार ऑफिसर को समवेयर पता चल गया कि ये लोग बराबर काम नहीं कर रहे, तो रजिस्ट्रार को पावर होता है कमेटी को डिस्क्वालीफाई करने का। नॉर्मल सेक्शन 75 says की डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नॉट कंप्लायंस ऑफ द एजीएम। सेक्शन 75 एजीएम के लिए, बट देयर आर मेनी अदर sections also where the managing committee can be disqualified। इन्होंने 75 वर्ड यूज किया तो मैं 75 बताता हूँ। 75 is disqualification for non-compliances of AGM, ठीक है। पहला तो आपको AGM जो है every year before 30 September और may be extended by law, वो डेट के अंदर करनी है। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग once in a year।
you have to give 14 days prior notice to members in writing. ठीक है? In AGM, minimum 5 points is mandatory to discuss. 5 point is minimum. उसके अलावा आप अपने मेंटेनेंस के पॉइंट्स कुछ भी डिस्कस करो या नहीं करो, वो आपके ऊपर है. अगर आपके पास मेंटेनेंस के भी सब्जेक्ट्स हैं कि ये मेजर रिपेयर करना है, ये करना है, वो करना है, इसका ट्रांसफर है, उसका ट्रांसफर है, ऑल दैट आर ऑप्शनल. बट 5 पॉइंट अगर आपके एजीएम के मिनिटेड नहीं है तो किसी भी की भी कंप्लेंट पे या रजिस्ट्रार के नॉलेज में आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. व्हाट आर दीज 5 पॉइंट्स? Number 1, to read and confirm the minutes of last annual general body meeting. सबको इसके बारे में पता है, ठीक है? और वो मिनट्स रीड और कंफर्म करते टाइम पे अगर वो लास्ट एजीएम में अप्रूव हुआ है और नहीं हुआ है तो वो चेयरमैन इज लाइबल टू गिव आंसर फॉर दैट. ठीक है? दिस इज पॉइंट नंबर 1. एजीएम के आपके एजेंडा में होना चाहिए. Number 2, to read and approve the books of accounts and financial statement of the previous year, including the audit report. ठीक है? आपका जो भी ऑडिट हुआ है, ऑडिट आपने एजीएम के एजेंडा के साथ सबको सर्कुलर किया है, सबको उसके आंसर्स कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करना है, उसको डिस्कस करना है और ये पॉइंट एजेंडा में चाहिए. अकाउंट्स अप्रूव करने का और ऑडिट अप्रूव करने का. 4th पॉइंट इज टू अपॉइंट, नहीं ये 2-3 साथ में कर दिए मैंने. ठीक है? 4th इज टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर. इसमें अगर आपने एजीएम में ऑडिटर का नाम और पैनल नंबर के साथ रेजोल्यूशन नहीं पास किया है तो उसके बाद आप कभी भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते. To appointment of auditors, self-appointment of auditor, only allowed in AGM, Annual General Body Meeting. Even if you skip that point and in the month of December you called a special General Body Meeting and appoint auditor, that is not valid. Even if you appoint auditor in any of the managing committee meeting, is not valid. Appointment of auditor, only one window is open in whole the law, your annual general body meeting. And annual word itself explained, it is to be once in a year. आपकी एक बार जो एजीएम होती है उसी में ही नेक्स्ट ईयर का ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है? देयर आर अदर वेज ऑल्सो. लॉ स्ट्रेट अवे से दिस कि सेल्फ अपॉइंटमेंट करना ऑडिटर का तो ओनली एजीएम इज देयर. बट कभी आपसे स्किप हो गया समझो, ठीक है, देन देयर आर अदर वेज आल्सो. यू कैन अप्रोच टू रजिस्ट्रार. अच्छा, कभी ऐसा भी होता है, आपको पता है कि ऑडिटर जो है वो 3 साल से ज्यादा नहीं कंटिन्यू रह सकता है, एक ऑडिटर है ना. एंड बिग ओवरलुक, आपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में ले लिया और वो 4th ईयर है, 3 साल उसने पहले कर लिया है ना. तो क्या करोगे आप? अपॉइंट तो किया आपने. तो ऐसे सिचुएशन में आपने ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है और चाहे ऑडिटर की नजर में आया या आपकी नजर में आया कि ये 4था साल है, ऑडिटर का रिजेक्शन लेटर लेना है कि ही इज नॉट, वो ऑडिटर आपको लिख के देगा ही इज नॉट एलिजिबल टू ऑडिट कंटिन्यू 4 ईयर फॉर योर सेम सोसाइटी, ही डिनाइड फॉर द ऑडिट. ठीक है? तो आपका रिजोल्यूशन का कॉपी और ऑडिटर का डिनाइड कॉपी लेके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, वहां पे सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है. देन रजिस्ट्रार विल अपॉइंट ऑडिटर फॉर योर सोसाइटी. इन दैट केस योर कमिटी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बिकॉज यू हैव अपॉइंटेड एंड ओवरलुक्ड. ठीक है? वहां पे कमिटी डिस्क्वालिफाई नहीं होगा, सेक्शन 75 एप्लीकेबल नहीं होगा. वहां पे रजिस्ट्रार कोई भी एक रैंडमली जो पैनल लिस्ट में ऑडिटर है वो आपको अपॉइंट करके दे देगा, आपने ऑडिटर उससे करवानी है. ठीक है? और समझो एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट करना भूल ही गए, किया ही नहीं हमने, रही गया, पॉइंट एजेंडा में ही नहीं डाला. ठीक है? या एजेंडा में पॉइंट डाला, मैंने देखा बहुत सारे जब ऑडिट करते हैं ना तो हमको रिजोल्यूशन मिलते हैं
the AGM give power to managing committee appoint auditor as and when required. अरे क्या है ये? Not allowed. ठीक है? वो भी नहीं चलने वाला है. That is also equal to not appointed auditor in AGM. उसमें भी आपकी कमिटी डिस्क्वालीफाई हो सकती है. ऐसा रेजोल्यूशन कभी नहीं पास करना है. आपको स्पेसिफिक ऑडिटर का नाम और पैनल नंबर के साथ रेजोल्यूशन करना है. बाद में वो मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन आपने किया ही नहीं है तो वो गलत है. ठीक है. अच्छा, सब मिला के हो गया कि अगर गलती से रह भी गया, नहीं अपॉइंट किया या रॉन्ग रेजोल्यूशन कर लिया कि एज एंड व्हेन मैनेजिंग कमेटी रिक्वायर्ड, तो भी इस केस में आप 1-to-1 रजिस्ट्रार को अप्रोच कर सकते हैं और वहां से ऑडिटर अपॉइंटमेंट का लेटर ले सकते हैं. ठीक है. बट दिस इज अल्टरनेट सोल्यूशन. मैं बोल रहा हूं कैमरे के सामने, ऐसा हमने किया भी है बहुत सारी सोसाइटीज के लिए. शायद आपके बोरला के लिए भी एक बार किया था, है ना. आपने एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया था और फिर हम जा करके रजिस्ट्रार से हमारे बंदे जा करके परमिशन लेके कर, बट वो हो गया. ठीक है. वो नहीं भी हो सकता और आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं. ये फुल प्रूफ नहीं है. जो मैंने अल्टरनेट दिया है ना, दैट अल्टरनेट इज नॉट फुल प्रूफ. ओके. लॉ के हिसाब से बोले, कैमरे के सामने बोले तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि अल्टरनेट है. लॉ से बोले तो आपको एजीएम में ही करना है. ठीक है. But if we go to the registrar with something like this, हाँ. then you know it's like आप है मुझे मार, because when we go and tell the registrar कि हमसे mistake हो गई और हाँ. हमने नहीं किया, तो can we be disqualified if we have not done it? if रजिस्ट्रार चाहे, वो रजिस्ट्रार चाहे, अगर उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है. अदरवाइज एवरीबॉडी नोज व्हाट आर द वेज टू एस्केप दिस. But is there a pardon to this? Is there a pardon? There's a pardon. Can the managing committee be pardoned for this mistake? Yes. Is there a pardon? There's something in the bylaws where the managing committee has made a mistake, but the registrar can give us a pardon on this matter. बिल्कुल. Yes. उसका सर कुछ हमको बताइए कि उसमें कैसे we have made a mistake and we have go. I said that this is just an alternate. Yeah. This is not foolproof. Yes. Okay. Yes. And if you want to be a foolproof to take a permission from registrar, then there is other way which I don't want to discuss now. Okay. All are very intelligent. All are just मेरा हिंदी समझ जाओ. हाँ. ठीक है. वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सब कुछ होता है. Okay. है ना? सब कुछ होता है वहां पे, जाना चाहिए. ठीक है. आप लॉ से पूछोगे तो ना. ठीक है. ये 4 पॉइंट हो गए. 5th पॉइंट जो नॉर्मली बहुत सारी सोसाइटी स्किप करती है, टू अप्रूव द बजट एक्सपेंस ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर. ये जरूर डालना है आपके एजीएम में. मैं रिसेंटली एक सोसाइटी बताता हूं, हमारे चेंबूर की है, मैं नाम नहीं लेता हूं. विद्या हंस रही है, उसको पता है, उसकी क्लाइंट सोसाइटी है. उन्होंने ये सारे 4 पॉइंट प्रॉपर किए थे और उनका ऑल इंटरनल मैटर जो है परफेक्ट था. सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं. वो फॉर्म सबमिट हो रहा है, 12 मैनेजिंग कमेटी मीटिंग की है, एजीएम की है, 4 स्पेशल जनरल बॉडी की हुई है, पेटी कैश बुक, आईजे रजिस्टर सब परफेक्ट मेंटेन किया. मैनेजिंग कमेटी सब एक्सपर्ट है. उन्होंने अपने जनरल बॉडी में नेक्स्ट ईयर का बजट अप्रूव नहीं किया. ठीक है. पर एक मेंबर जो था सोसाइटी का, फ्लैट ओनर, उसका मैनेजिंग कमेटी से पर्सनली 36 का आंकड़ा था. उसने कंप्लेन कर दी कि बजट पास नहीं किया. उसी बेसिस के ऊपर 15 दिन पहले रजिस्ट्रार का नोटिस आया है सोसाइटी को, अंडर सेक्शन 75 कमिटी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years. So this only happens if somebody complains. Somebody complains or by anyhow registrar knows this. Yes. So who is authorized to complain? If that person. Any person, your flat owner, your flat owner's son, their relatives, your घर में काम करने वाली बाई. आप समझे कि नहीं? इधर मौका चाहिए. हाँ. पकड़ने का मौका चाहिए, तो वो मौका हम लोग किससे भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे. वही हो गया. हाँ. रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन पूछना है और इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाले बंदे की ताकत कितनी है वो भी डिपेंड करता है. Sir, when you keep saying committee, you mean the office bearers are disqualified or the entire committee? Entire committee. Okay. ठीक है. All is depend upon registrar also.
ठीक है, कि खाली वो चेयरमैन को करता है या इंटायर कमेटी को करता है। चेयरमैन तो पक्का ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको एजीएम से पहले बजट प्रिपेयर करना है कि जैसा है अभी आपका 24-25 फाइनेंशियल ईयर चालू है, आपका सितंबर 24 में एजीएम होगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है 25-26, तो 25-26 के आपको एस्टिमेटेड निकालने हैं, आपका हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्रॉपर्टी टैक्स, ये फलाना 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 कितना खर्चा है, उसका बजट आपको अप्रूव करके लेना है। जैसे हमारे नेशनल लेवल पे फरवरी में हर साल बजट आता है, ठीक है, नहीं, अगर वो बजट एक्सीड हो गया तो बाद में चेंज कर सकते प्लान है, हैं। प्लान में बना दिया है, प्लान में बना दिया, बजट कर रहे हैं, इतना हाँ। प्लान बना रहे हैं, लेकिन कल को दो चेंज हुआ तो यू कैन चेंज विद द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। अच्छा, बजट फिर से एसजीएम करना है, एसजीएफ करके बजट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कमिटी को क्या पावर होता है, जो बजट में आपने एक्सपेंसेस अप्रूव किए हैं, ठीक है, वो बाद में जाकर के जब नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आपका बिलिंग होगा, वो नया बजट के हिसाब से आएगा कि आपका अप्रैल 25 में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा नेक्स्ट ईयर, तो अप्रैल 25-26 में जो भी आपके एक्सपेंस होने वाले हैं वो इस बजट के हिसाब से एलोकेट होंगे, बिकॉज सोसाइटी इज एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बजट में आपने कुछ भी 1 रुपया ज्यादा नहीं रखना है, 1 रुपया कम नहीं रखना है, बिल्कुल उसमें रियलिटी रखनी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा सिक्योरिटी का 80,000 रुपये महीने का खर्चा है, हम बजट में 90 डाल दें, वो भी गलत है। आप बोला हमारा पानी का बिल जो है 40,000 रुपये महीना आ रहा है, हम बजट में 60,000 डाल दें, नहीं। So, but जैसा पानी और लाइट बिल इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेट, वी कैन नॉट डिसाइड दैट। Yes, there is a law is silent about this, but normally we do the practice कि previous 3 months average ले लेते हैं। आपका आज जो पानी का कंजम्पशन हो रहा है उसका 3 महीने का एवरेज ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का 3 महीने का एवरेज ले लेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर पक्का फ्लक्चुएशन 3 मंथ एवरेज से ज्यादा होने वाला है, विद अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन यू कैन दैट इम्प्लीमेंट इन बजट विद द परमिशन ऑफ जनरल बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 75। इसमें जो भी कमेटी डिस्क्वालीफाई होती है वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होती है, आने वाले 5 साल के लिए वो किसी भी कोऑपरेटिव सेक्शन में काम नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा सीरियस पॉइंट है। मैं ये भी एक स्टोरी आपको बताता हूँ इसके ऊपर, एक रियल नहीं है, स्टोरी है। एक बंदा समझो कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर है, घर में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कमिटी मेंबर है, उसने हाउसिंग सोसाइटी में काम बराबर नहीं किया और रजिस्ट्रार ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, इमीडिएटली उसको बैंक मैनेजर से भी रिजाइन करना पड़ेगा। So that means if I am a member here and I get disqualified, और मैं अगर दूसरे प्रॉपर्टी में मेंबर हूँ वहां से भी disqualified, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका इन्वॉल्वमेंट है सब जगह से आपका रेजिग्नेशन होगा, चाहे दूसरे कोई सोसाइटी में आप ऑफिस बेरर हो या आपका वर्किंग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। Very serious. This is very serious. From all cooperative sections, you will be disqualified for 5 years. This is section 75(6). So who informs the other party? This is दूसरी मीटिंग में कौन इन्फॉर्म करेगा? वो आपका रिकॉर्ड पे आ जाएगा, आपको नोटिस आ जाएगा। वो तो ठीक है, नोटिस मुझे आया है, मेरी दूसरी सोसाइटी को तो आया नहीं। वो आप हाइड करते हो और कल को पकड़े गए तो डबल इम्पैक्ट होगा। इसे यहाँ हम लॉ डिस्कस कर रहे हैं, वी डिस्कसिंग ओनली लॉ। As per law, you will be disqualified from all the cooperative sections wherever you belong to. Your moral duty to go ahead. हाँ, this is your moral duty to inform to other cooperative sections also wherever you are directly or indirectly involved. ठीक, ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। 2 है, ट्रांसफर मीन्स when your shareholder at present जिसके नाम पे फ्लैट है he is alive, ठीक है, वो जिंदा है और उसने अपना फ्लैट दूसरे को देना है। फॉर एग्जाम्पल वो सेल करके जा रहा है, उसने अपने किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट कर दिया है,
ये दो ट्रांसफर के जो है वो मेन एग्जांपल्स हैं। डेथ ट्रांसमिशन में आ जाए, अलाइन, व्हाट आई से, इफ द मेंबर इज अलाइन, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरी ओनरशिप, मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो मेंबरशिप से और दूसरे को मेंबर बनाओ, ठीक है, वो हो गया ट्रांसफर। ट्रांसमिशन मीन्स व्हेन द मेंबर इज डाई, ही इज नो मोर, ठीक है, उसके लीगल हेयर्स को या फैमिली मेंबर्स को या उसके नॉमिनी को या उसके विल बेनिफिशियरी को, जिसको भी आपको ट्रांसफर करना है, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, ट्रांसफर नहीं बोलते, ठीक है। अब इसमें मेन एक चीज होती है, यहाँ पे बड़ा जो है सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को जानकारी नहीं होती है कि इस टाइप के केसेस में आयकर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन जब एप्लीकेशन सोसाइटी में आती है मेंबर से, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, सारे एज पर लॉ है कि नहीं है, मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज देखनी है। If I can just pause you for a minute, since you said paucity of time, so you just rushed through this topic. Transfer, I think, is far more simpler for everybody agrees. उसमें Yes, you are advocate, so you knowing better. Transmission. बिल को पूरा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन में ही चाहिए, फिर उसी में ट्रांसमिशन पे ही आ जाते हैं। ट्रांसफर में सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसमिशन में क्या होता है, एज पर रूल 2425 ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, नॉमिनी इज मैंडेटरी व्हेन द मेंबर इज अलाइन, वो शेयर होल्डर है तो उसका नॉमिनी बनाना कंपल्सरी है, ठीक है। अगर कोई फ्लैट ओनर आपकी बिल्डिंग में भी किसी ने अभी तक नॉमिनी नहीं बनाया है, इट इज मोरल ड्यूटी ऑफ द मैनेजिंग कमिटी टू फोर्स देम टू मेड अ नॉमिनी, ठीक है। लेकिन आप उसका फॉर्म उठा के खुद साइन करके नहीं सबमिट कर सकते, आप उसको फ्रीक्वेंटली पीरियडिकली रिमाइंडर्स भेजना है आपने। अभी लॉ आया है ना, 100% नॉमिनेशन इज मैंडेटरी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और अगर नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग कमिटी पे आती है। तो मैनेजिंग कमिटी के ऊपर जब उंगली आएगी कोई डिपार्टमेंट से या जनरल बॉडी से आपकी, तो मैनेजिंग कमिटी के पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हमारे 50 फ्लैट की सोसाइटी में 4 लोगों का अभी तक नॉमिनी नहीं है, ये 4 लोगों को हमने 40 बार रिमाइंडर लिखा है, ये आपका जस्टिफिकेशन होगा। बट आप उसका कॉलर पकड़ के तो नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आपका पीरियडिकली उसको रिमाइंडर जाना चाहिए कि हमारे रिकॉर्ड में आपका नॉमिनी कोई नहीं है। तो रूल 2425 नॉमिनेशन जो है वो कंपलसरी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग कमेटी की रहती है कि वो सबसे करवाते हैं। इसके अलावा विल, जो बंदा अलाइव है वो उसके बाद प्रॉपर्टी उसकी शेयर किसको जाना है वो विल बना सकता है, दिस इज ऑप्शनल, उसका आपका मैनेजिंग कमेटी से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी की विल बना सकता है। एंड थर्ड, वो बंदा समझो लेजी है, ना उसने नॉमिनी किया है ना उसने विल किया है और सडनली उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ठीक। ये 3 केस है ट्रांसमिशन के, ठीक है, ये 3 नॉर्मली केस आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी के। फर्स्ट केस में डिस्कस नॉमिनेशन। नॉमिनेशन फॉर्म का जो प्रोसीजर कैसे करना है वो अलग हो गया, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रिप्लिकेट में लेना है, ये करना है, वो करना, हो जानते थे। हम ये मान के चलते हैं कि प्रॉपर नॉमिनी रिकॉर्डेड है सोसाइटी की बुक्स में, ठीक है, और उस बंदे की डेथ हो गई है। बंदे की डेथ होने के बाद जो भी उसका नॉमिनी है, जो बेनिफिशियरी है उसका, ठीक है, वो सोसाइटी को एप्लीकेशन करता है मेंबरशिप के लिए, ठीक है। ऐसे केस में कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स है बायलॉज में, अलॉन्ग विद द ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म विद द फ्लैट ओनर, उसके नॉमिनी के पास, और प्लस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स इन द बायलॉज, एप्लीकेशन कवर लेटर के साथ, डेथ सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है, और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो नॉमिनी है, क्योंकि नॉमिनेशन करते टाइम उसने केवाईसी नहीं डाले होते, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सोसाइटी में सबमिट करता है। सोसाइटी उसको वेरीफाई करती है सारी चीजों को अपने रिकॉर्ड से कि नॉमिनी बराबर हमारे रिकॉर्ड में भी वही है, सब कुछ वही है। ऐसे केस में उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट होगा, बट कंडीशनल, ठीक है, वो ओनर नहीं बनेगा, वो सिर्फ केयर टेकर बनेगा फ्लैट का, ठीक है।
जब तक उसका एक्चुअल लीगल है सामने नहीं आता है, जब तक एक्चुअल कोर्ट का सक्सेशन नहीं आता है, तब तक वो शेयर सर्टिफिकेट के बैक साइड में उसका नाम आ जाएगा, बट एज अ नॉमिनी मेंबर, एज अ केयर टेकर। ठीक है, वो सोसाइटी की जनरल बॉडी अटेंड कर सकता है, वो कम्युनिटी कमेटी में भी आ सकता है, वो रेंट पे भी दे सकता है फ्लैट ऑफिशियली, वो उसके सारा एंजॉय भी कर सकता है, खुद भी रह सकता है ऑफिशियली। ठीक है, बट जहां तक प्रॉपर्टी राइट्स आता है, उसको सेल करना, वो आगे किसी और को ट्रांसफर करना चाहे अपने जीते जी, सेल और गिफ्ट वो नहीं कर सकता। But what if the nominee himself is a legal heir? हाँ, वो अलग प्रोसीजर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसीजर हो गया नॉमिनी का, कि नॉमिनी से ट्रांसमिशन हो रहा है तो ये चीजें होती है। ऐसे केस में नॉमिनी को अगर ओनरशिप बनना तो क्या ऑप्शन है, और जिंदगी भर तो नॉमिनी मेंबर नहीं रह सकता है ना? तो उसके लिए लॉ सबसे पहले बोलता है वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट इज सक्सेशन सर्टिफिकेट, यू मस्ट बी नोइंग दिस एज आई हैव। ठीक है, उसको कोर्ट से जाके उसके फेवर में सक्सेशन लाना पड़ता है, उसके फेवर में नहीं ला सकता है तो उसके भाई, उसकी बहन, उसका जो भी होगा, किसी को रिलीज डीड करके कुछ भी करके वो सक्सेशन लेके आएगा, जिसके नाम पे भी सक्सेशन आएगा वो ओनर बन जाएगा। द सक्सेशन जिसके फेवर में आता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो नॉमिनी मेंबर ही हो, जिसके नाम में भी फैमिली में, अच्छा 2 मेंबर के नाम पे भी सक्सेशन आ सकता है, उनके रेशियो उसमें डिसाइड हो सकते हैं कोर्ट से, एक नॉमिनी होगा और एक नॉमिनी नहीं होगा। ठीक है, तो जिसके नाम से भी कोर्ट का सक्सेशन ऑर्डर आता है, सोसाइटी ने उसको मेंबर बनाना है, और फुल मेंबर बनाना है, उसको ओनरशिप देनी है, उसको सेल्स राइट भी देनी है अगर उसके पास सक्सेशन है। ठीक है, सेकंड, ये सक्सेशन तो बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट है, आप सबको पता होगा, 4-6 महीने का टाइम लेता है, खर्चा भी 1,00,000-1.25 लाख के करीब हो जाता है। ठीक है, 72,000 का तो उसमें ऑफिशियली चालान भरना पड़ता है। कोर्ट में आप एक सिंपल सक्सेशन भी लेने जाएंगे तो 72,000 को ऑफिशियली चालान भरना है, बाकी जो एडवोकेट के खर्चे और ये सब होते हैं, 1,00,000-1.25 लाख 1.5 लाख भी कोई लोग ले लेते हैं। सक्सेशन के बाद सेकंड स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट रहता है हेयरशिप सर्टिफिकेट। अगर वो हेयरशिप भी लेके आता है, हेयरशिप और सक्सेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टाइम भी उतना ही लगता है, खर्चा भी उतना ही आता है, लेकिन उसका कोर्ट में प्रोसेस थोड़ा सिंपल है सक्सेशन से। ठीक है, तो अगर हेयरशिप भी लाता है तो उसका ट्रीटमेंट सोसाइटी ने सेम देना है, जिसके फेवर में हेयरशिप सर्टिफिकेट आया है उसको पूरा फुल प्रूफ ओनर बना देना है। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। थर्ड जो डॉक्यूमेंट हमारे यहां चलता है, नॉमिनी में नहीं होगा, नॉमिनी में होगा तो यही 2 उसको लगेंगे। ठीक है, आइदर सक्सेशन और हेयरशिप। नॉमिनी में और ज्यादा कुछ डिस्कशन करने के लिए नहीं है, या तो वो नॉमिनी में मेंबर बनकर लाइफ टाइम रहे, या तो सक्सेशन या हेयरशिप है। ठीक है, सेकंड हम आते हैं विल पे। अगर है, अगर जो आज ओनर है मरने से पहले उसने विल किया है किसी के फेवर में, तो बेनिफिशियरी एप्लीकेशन करेगा। बेनिफिशियरी की एप्लीकेशन में उसको हम स्ट्रेट अवे मेंबर बना सकते हैं, उसके लिए सक्सेशन या हेयरशिप की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है विल में, अगर विल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आती है, एक भाई के फेवर में विल है, दूसरे भाई ने ऑब्जेक्शन ले लिया, तो वो विल को प्रोबेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो विल प्रोबेट होगा, उसके बाद ही सोसाइटी वो विल को एंटरटेन करेगी। What if the will is registered will? इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड, And if the will is not registered, it is only notarized, is it valid? देन ऑल्सो विल का फंडा क्या है? देखो हमारे आजकल तो रजिस्टर्ड करते हैं सब, लेकिन आप ट्रेडिशनल देखिए, आदमी हॉस्पिटल के बेड पे है, डॉक्टर ने बोला तेरी 2 घंटे की जिंदगी बाकी है। ठीक है, वो बाजू में टिश्यू पेपर पड़ा होगा हॉस्पिटल में, उसके ऊपर उठा के अपनी बिल लिख देगा ना, वो भी वैलिड बिल है। डॉक्टर के सामने। हाँ, आप समझे कि नहीं, वो भी वैलिड है। लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज मैं होशो आवास में हूं, तो मैं अपनी विल प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके अच्छे से उसका बेनिफिशियरी की टर्म्स कंडीशन डाल के और फिर उसको रजिस्टर करवा देता हूं। दैट इज जो है वो करना चाहिए, एडवाइजर है। So you say if somebody submits a will, just on the basis of that, whether it's registered, because registration of a will is not a mandatory. Not a mandatory, yes. So say if somebody is not registered,
and you are submitted a will, without a probate, can you transfer it? Yes, in cooperative society we can transfer. It's If there is no objection from the other members. No, but how can a society ensure that they have protected themselves? Because once you receive the will, you don't have to bother about it. But then, say if there is an objection later, or somebody, you know. Then in that case now, there is form number 19 is there in bylaws. I said with the application, prescribed forms from the bylaws is required. Form number 19 is indemnity bond. Appendix 19. That indemnity. Indemnity bond says कि on the documents from which the society is transferred now or transmission now, if somebody challenge in future, then the person जिसके नाम पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं is fully responsible for that. Society and its office bearers are free from these transactions to reverse at any time. So basically, for a society, it's sufficient to receive a copy of the will. That's it. Yes. Okay. Yeah, I just one point. See, if this property or whatever is being transferred is a joint property, so how the will or the nominations or the succession gets decided? I'll take after completion this. I understand your question. ठीक है, अभी तक हम डिस्कस कर दी एक ही के नाम पे और वो मर गया, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी दो के नाम पे एक मर गया एक जिंदा है, तो क्या करना है? यही आपका सवाल है ना? ठीक है, ये विल का जो हुआ, क्योंकि मैं इसलिए उसको होल्ड कर रहा हूं कि उसका आंसर तीनों केस में सेम है, तो वो मैं साथ में ले लूंगा। विल के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन आया तो आपने प्रोवाइड करवा के फिर लेना है अलॉन्ग विद द बायलॉज फॉर्म्स। थर्ड केस है, ना उसने विल किया ना नॉमिनेशन किया और लुढ़क गया, अब क्या करना है ना? तो ऐसे केस में अगेन फर्स्ट पावरफुल डॉक्यूमेंट इज सक्सेशन, सेकंड इज हेयरशिप, थर्ड इज रिलीज डीड, फोर्थ इज एफिडेविट। चार ऑप्शन है, ठीक है। नॉमिनेशन में वो दो ऑप्शन नहीं है लास्ट में, रिलीज और एफिडेविट ऑप्शन नॉमिनेशन के केस में नहीं है, आपने नोट किया है ना? नॉमिनेशन में ट्रांसमिशन करना है तो आपको दो ही ऑप्शन है, सक्सेशन और हेयरशिप। लेकिन अगर उसने नॉमिनी नहीं किया है या नॉमिनी किया और हाइड कर दिया, सबमिट नहीं करते, फैमिली वाला नॉमिनेशन को क्लेम नहीं करता है, सपोज जो फैमिली मेंबर्स हैं वो नॉमिनी जो है क्लेम नहीं करता है, बिल्कुल भी सोसाइटी को नहीं बोलता कि मैं नॉमिनी था, भले सोसाइटी के रिकॉर्ड में वो नॉमिनी है, वो नॉमिनेशन फॉर्म क्लेम नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पे उसको दो की जगह चार ऑप्शन मिल जाती है, सक्सेशन, हेयरशिप, रिलीज डीड एंड एफिडेविट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट की जो दो ऑप्शन है ना वो अगेन डिस्प्यूटेड है, कोई सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कोई सोसाइटी नहीं करती है, बट बायलॉ में लिखा है कि वो एक्सेप्टेड है। अभी आप प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं ना सबका, आप वाशी साइड में चले जाओ सिडको एरिया में, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ना रिलीज डीड एक्सेप्ट करते हैं, नहीं एफिडेविट एक्सेप्ट करते हैं। हर एक सोसाइटी का वहां पे ट्रेंड ही बन गया है, उनको एयरशिप चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे नॉमिनी है या नहीं है। वो करते ही नहीं है, इवन वो जो सिडको वाले भी उसके ऊपर, क्योंकि वहां पे जो है ना एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट सिडको से लेना पड़ता है। हमारे बॉम्बे में क्या है, एप्लीकेशन सोसाइटी में क्या, सोसाइटी ने ट्रांसफर किया मेटरनेट्स, वहां पे क्या होगा, आपने सोसाइटी में एप्लीकेशन किया, सिडको से एनओसी आएगा तब सोसाइटी करेगा, वो सिडको एनओसी नहीं देती है एयरशिप के बारे में। अब सिडको को जाके कौन बोलेगा कि देखो भैया बायलॉज में लिखा है, यस, तो वो सिडको वाला एनओसी नहीं देता है, इसके लिए सारी सोसाइटी ने ही एडॉप्ट कर लिया कि हमको एयरशिप चाहिए। बट बॉम्बे में देयर आर नंबर ऑफ केसेस approved by all the authorities where release deed is okay with that documents. Even आप रजिस्ट्रार ऑफिस में भी चले जाओ, हमारे यहाँ का जो फाइन आर्ट्स के पीछे वो रिलीज डेट आपको रजिस्टर करके देता है, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया जब नॉमिनेशन और विल दोनों भी नहीं बना है। अभी इसके सारे केसेस में ना
नॉमिनेशन है, विल है, कुछ भी नहीं है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है, जो इनका सवाल था, है ना? हिंदू सक्सेशन एक्ट भी एक चीज है। इसमें क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे आप 2 ओनर हो या सिंगल ओनर हो, आपने कुछ भी नॉमिनी किया है या नहीं किया है, आपका एक फैमिली ट्री बनाया जाएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक। ठीक है, फैमिली ट्री में जो मरने वाला है, चाहे वो 100% ओनर है एग्जिस्टिंग, या 50-50 है, या 4 ओनर 25 है, ठीक है, उसका फैमिली ट्री बनाते हैं। मरने वाले का वाइफ, उसका एक बेटा, 2 बेटा, उसकी डॉटर मैरिड है या नहीं मैरिड है, जो भी है, इवन द मैरिड डॉटर इज ऑल्सो बेनिफिशियरी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट नाउअडेज। ठीक है, तो उसका फैमिली ट्री बनाया जाता है, एंड बाय डिफॉल्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इक्वली बेनिफिशियरी फॉर द शेयर ऑफ डिसीज्ड मेंबर। अगर आपके 2 मेंबर है, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, 50-50% दोनों के नाम पे है शेयर सर्टिफिकेट, चलो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड के बेनिफिशियरी कौन है? सबसे पहले तो वाइफ, फिर उसके 2 बेटे और 1 बेटी, समझ लो, तो 4 जन हुए। तो हस्बैंड का 4 जन का शेयर किसको जाएगा? चारों को जाएगा 12.5, 12.5, 12.5, 12.5। ठीक है, तो वाइफ ऑलरेडी 50 है, तो वाइफ को प्लस 12.5 मिलेगा, तो 62.5 हो जाएगी। दोनों बेटे 12.5, 12.5, एंड बेटी जो है 12.5। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिवीजन होगा। आपका भी आंसर आ गया इसमें, ठीक है। अब इसमें ये होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट, मगर फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है? फैमिली की रिक्वायरमेंट बोलती है हमने बेटी को नहीं देना है, उसकी शादी हो गई, उसको बहुत खर्चा कर दिया था शादी, उसको नहीं देना है, एंड बेटी इज ऑल्सो, डॉटर इज ऑल्सो, ठीक है, ओके है, मेरे भाइयों को मिल जाएगा, माँ को मिल जाएगा, चलेगा, मुझे नहीं चाहिए, है ना? तो ऐसे टाइम पे वो अपना शेयर रिलीज कर सकती है। एनी माँ को कर सकती है, तो माँ का 75 हो जाएगा, किसी एक भाई को कर सकती है, या अपना 12.5 डिवाइड बाय 3 करके तीनों को भी कर सकती है। इवन सिमिलरली अगर कोई बेटा बोलता है नहीं मेरी फाइनेंस पोजीशन मजबूत है, मुझे नहीं चाहिए, तो वो भी अपने शेयर को रिलीज कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर फ्रॉम दिस ट्रांसमिशन, जस्ट अ हेडलाइन, डिटेल में जाओगे तो 2 घंटे में। For the joint property, always this Hindu Succession Act will be required to. इवन अ जॉइंट प्रॉपर्टी और सिंगल ओनरशिप हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। नहीं, सिंगल ऑनरशिप का तो आपने सारे प्रोसीजर्स बता दिए, हाँ। ये है वो सब है, अभी जॉइंट प्रॉपर्टी में भी वो सब करके रखा है, हाँ। बट स्टिल हिंदू सक्सेशन एक्ट विल बी द प्रिवेलिंग थिंग, इज इट लाइक? यस यस, सिंगल ओनर है तो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। बाद में लगेगा। हाँ, अभी क्या है, जैसे नॉमिनी आ गया या विल था उसका ऑलरेडी, उसके हिसाब से वो नॉमिनी जो हो गया तो उसको सक्सेशन चाहिए। एज अ जॉइंट होल्डर आल्सो देयर इज, लेट अस से, अ विल। हाँ। दोनों ठीक, ओनर्स ने हाँ, समझ। अपना अलग-अलग विल रखा हुआ है। समझ गया मैं आपका सवाल। हस्बैंड एंड वाइफ 2 के नाम पे है, दोनों 50-50% है, ठीक है। हस्बैंड ने अपनी विल अलग बनाई है, वाइफ ने अलग बनाई है। डेथ हस्बैंड की हुई है, वाइफ इज अलाइव, उसके 50% को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। जो हस्बैंड का 50% है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिवाइड है, ठीक है। और हस्बैंड का विल का जो बेनिफिशियरी है उसको प्रोवेट करके लाना पड़ेगा। हस्बैंड का जो नॉमिनी है उसको हेयरशिप लाना पड़ेगा, खाली हस्बैंड के शेयर का। सो हस्बैंड का शेयर ही कैन नॉट डिक्टेट नो, कि मेरे को ये अपना शेयर जो है इनको देना है। नहीं, वो बोल सकता है, नॉमिनेशन फॉर्म में बोल सकता है। अब देखो नॉमिनेशन फॉर्म में भी आपने ना अगर ध्यान से पढ़ा होगा, नॉमिनी तो आपको 4 कॉलम भी देगा, 6 कॉलम भी देगा, आप ABCDE कुछ भी नाम डाल दो, परसेंटेज भी मेंशन कर दो, देखा कि नहीं आपने? लेकिन उसके नीचे के सेंटेंस क्या है कि इन केस ऑफ माय डेथ द शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू एट सीरियल नंबर 1। उसका कोई सेंस है? नहीं, वो मतलब मतलब ही नहीं है वो लॉ का। हमने भी बहुत बार सोचा क्यों है, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, तो 4 आदमी का नाम क्यों लिखा है? ठीक है, जब नीचे उसने कंडीशन लगा दिया फॉर्म के अंदर, ये इसके लिए हो सकता है खाली जब आप हेयरशिप या सक्सेशन लेने जाते हैं तो वो 4 को
प्राइमरी कंसर्न किया जाता है, ये हो सकता है, am I right? है ना? वो 4 को प्राइमरी जो कंसर्न करते हैं, जो भी आपका कोर्ट में जो भी होगा, ठीक है। See, I think As part of my will, let's say I say my successors will not be given any share in the property. I declare somebody else. Let's say I declare it for charity. Then only even if you say कि ये बंदे को नहीं देना है, वो भी चैलेंज कर सकता है। इसके लिए क्या करते हैं ना, ये तो चलो लॉ को एक तरफ साइड से छोड़ो, बीइंग अ प्रोफेशन हम लोग क्या करते हैं, मरने वाले की इच्छा पूरी हो, बिल मतलब इच्छा, मरने वाले की इच्छा पूरी हो, वो सही तरीके से उसके दिमाग में आज जो जीते हैं वो पूरा हो, हम एक उसमें ट्विस्ट लाते हैं बिल में। क्या ट्विस्ट लेके आते हैं हम जब प्रोफेशनली अपने टेबल पे काम करते हैं? समझो आपके 2 भाई हैं, 2 बेटे हैं, मेरे नाम पे फ्लैट है, 2 बेटे हैं, मैं बड़े बेटे को देना चाहता हूँ, छोटे को नहीं देना चाहता हूँ। ऐसे केस में छोटे को मैं विल में विटनेस बनाता हूँ। जब विल रजिस्टर्ड करने जाता हूँ ना, मैं छोटे बेटे को उसमें विटनेस बनाता हूँ कि इसमें देना, तो वो उसको विल को ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता बाद में, क्योंकि उसने खुद ही विटनेस किया है फादर के जितने जी कि मुझे नहीं चाहिए। there is a very thin line in this. Yeah. Because a witness, anybody witnessing a will is not necessarily also no, is not necessarily aware of the provisions of the will. Yes, I know this. So this is not a necessary case कि अगर witness बनाया he can't challenge it because he's not necessarily in. But somehow it is safe. But witness तो you know ना what is the No. witness. No, what she is saying is correct. Witness just to the signature. The witness. Not is to the always- Witness means what? कि all the will holder is sign in front of it. That is okay. That's it. Signatures is done by in front of it. You actually cover the Not will. necessary that they know the contents of it. ठीक है, तो हम सेफ्टी के लिए डाल देते हैं कि भाई आप अपने दूसरे बेटे को जिसको नहीं देना चाहते हैं उसको विटनेस बना दो, तो थोड़ा सा एक मोरल हो जाता है, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। I'm just wondering, whilst we're talking, Naren, whether we should, I mean, I don't know if anybody does it. Is it necessary? See, because this is an issue which is always there. मैं नॉमिनी किसी को बनाती हूँ, बिल में किसी और का नाम डालती हूँ, it's a constant. तो ये सब क्या होता है, जब डेथ होती है ना ओनर की, जो एप्लीकेंट है वो कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, विल लेके आ रहा है कि नॉमिनी लेके आ रहा है? I'm saying, is it necessary to educate members that when you are doing these things? Then both should be the common. Yes. Is it necessary to educate Yes. members? In fact, for you, because you Ye- deal with many more societies. Yes. Probably members should be educated that unless a particular person is not available for any reason, who's going to be a legatee but is not a nominee, normally have something where it's not completely senseless when you read the two together. Correct. These type of things should be known to all the members. Yeah, you can just It is come just and not for educate. the- So this education is need to be given to all. Yes. Because this is a permanent issue. But all this mind of the individuals, you cannot change anyone. ठीक है, your question is already solved. Where you have these nominee. We also going to finish. और कोई सवाल था हमारा? फटाफट ले लेते हैं। Different type of things. एक member होगा, इस suppose there are certain members who are I think can the members take some kind of action on those members? अच्छा, वो इनका क्या सवाल है कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं, कितने मेंबर हैं आपकी सोसाइटी में? 14 मेंबर्स है, बड़ा सोसाइटी है, 240 मेंबर है, 224 मेंबर्स का सोसाइटी है, 14 जन मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में इलेक्ट होके आ गए 5 साल के लिए। अब 14 लोगों के आपस में ही नहीं बन रही है ना? 8 लोग एक टीम में, 6 लोग एक टीम में, 6 वाले जो है मैनेजिंग कमेटी में मीटिंग कॉल करते हैं, 8 वाले आते ही नहीं है, कोरम नहीं होती है, कभी मीटिंग हो ही नहीं रही है, ऐसा ही है। उसमें से 1-2 members ऐसे हैं जो nuisance करते हैं, तो is it possible to देखो ये है ना, आपका फैमिली में ही अगर कोऑपरेशन नहीं है, लॉ तो कभी भी नहीं इसके बारे में बोलेगा कि मैनेजिंग कमेटी में डिस्प्यूट है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं लिखा है, ठीक है ना? डिस्प्यूट के बारे में लिखा है इसका, ना सोल्यूशन के बारे में। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर चेयरमैन सेक्रेटरी इज फील देमसेल्व्स कि दे आर नॉट एबल टू रन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ एनी एक्स रीजन, ठीक है, देन द चेयरमैन्स ड्यूटी टू इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार
whatever is the condition, whatever is the status of the society, and let the registrar take the action on that. Action वो क्या लेगा मैक्सिमम? नया कम्युनिटी बनाने से पहले वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर लाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर का रूल अभी चेंज हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर अकेला सोसाइटी रन नहीं कर सकता है, 3 मेंबर सोसाइटी में से उसने लेने हैं। ठीक है, 3 मेंबर सोसाइटी के आएंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, चारों मिलके उसको रन करेंगे फॉर 6 मंथ्स। और उसके बाद अगर सोसाइटी से प्रेशर जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटर के निकाल के आपका नया इलेक्शन करके नया कमेटी बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं कॉल करेगा इलेक्शंस के लिए? क्यों करेगा वो? उसको तो उसको पैसा मिल रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटर में, गवर्नमेंट से पगार भी मिल रही है और भी मिल रहा है, क्यों करेगा वो? उसको जितनी सोसाइटी में एज एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसको उतना पैसा मिल रहा है ना। तो ये तो सोसाइटी से प्रेशर जाना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस में कि हमारा न्यू इलेक्शन करा के दो। ठीक है, Thank you so much. दैट्स इट। और कुछ है? New members not submitting documents. हाँ, नॉर्मली जो भी ट्रांजैक्शन होता है आपका सेल डेट बना, ठीक है, न्यू मेंबर ने एप्लीकेशन ऑफ मेंबरशिप करनी है, आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई, लीगल हेयर, नॉमिनी, विल बेनिफिशियरी, हुएवर इज, उसको एप्लीकेशन करनी है। फॉर ऑल दिस 90 डेज पीरियड इज गिवन इन बाय लॉस। ठीक है, आदमी मरता है, थोड़ा शोक में रहता है, ये होता है, तो 90 दिन का टाइम दिया है। 90 दिन के अंदर उसको एप्लीकेशन करना है, जो भी प्रिस्क्राइब ट्रांसफर फीस है, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस है, डॉक्यूमेंट सब देने हैं और शेयर सर्टिफिकेट अपने नाम पे करवाना है। ठीक है, अगर वो नहीं देता है, सोसाइटी को अगर पता चल गया कि ये ट्रांसफर हुआ है या ये घर में डेथ हुई है, तो सोसाइटी का पहला मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिमाइंडर देना कि आपका एप्लीकेशन दो। और अगर सोसाइटी को नहीं पता चला है कि घर में डेथ हुई है तो लेट इट बी लेफ्ट टू मेंबर्स। 90 दिन के बाद एप्लीकेशन आती है, आपको कोऑपरेशन करना है, आप ट्रांसफर करके लो। आपको प्रेशराइज करना है, जो ट्रांसफर फीस है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करो। कोई लोग 2 साल तक नहीं करते, मकान खरीद लिया, पोजीशन ले लिया, ठीक है, सेल डीड बन गया, सोसाइटी में ना 25,000 दिया, नए ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स डाले, तो ऐसे केस में सोसाइटी उससे 25,000 पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। और सेकंड थिंग, उसको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस चार्ज कर सकती है कि भाई आप रह रहे हो और हमारे मेंबर नहीं हो, तो यू शुड गिव नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। ठीक है, और अदरवाइज उसको लेटर लिख के प्रेशराइज कर सकती है। सो दीज आर दी 3 ऑप्शंस if member not submitted their documents on time। ठीक है, तो वो कुछ तो आपने सीखा होगा, बहुत छोटा टाइम था, लेकिन जो आपके सवाल थे उसका जवाब आपको मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।